Hello students, welcome back to the next topic. Last time in the last video we had discussed about the latent heat and its type, and today we will discuss in another topic, that is sublimations. And what is sublimations? Have a look. The changing of a solid directly into vapor on heating and of vapor into solid on cooling is known as sublimation. That means that the changing of a solid directly, कोई भी solid change directly, that means not to change into liquid form. कोई भी liquid form में change नहीं होना, directly into a what? In vapor form. That means gas. There is no change about a liquid, and after liquid then it change into gas. So it does not exist that. ये exist नहीं करता है. तो sublimation उसको बोलते हैं जो directly get change from solid to gases. That means vapor. So the changing of solid directly into vapor on heating and of vapor into solid on cooling is known as sublimation. That means vice versa. बोलने का मतलब क्या है? बोलने से कोई भी solid चीज, कोई भी, that means not कोई भी but particular solid things that is go under sublimation, जो sublimation के process में जा सकता है, only that particular substances which is directly get change into vapor, जो गैस में directly solid से गैस में change हो जाता है, तो उसको हम लोग sublimation बोलते हैं. और next one is that after cooling the vapor, अगर कोई भी that particular vapor that which goes under the sublimations, it again change into solid form, जो कि सॉलिड फॉर्म में फिर दोबारा वो चेंज हो जाता है या हो सकता है फ्रॉम गैसेस टू सॉलिड, तो उसको भी हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं. तो दैट्स व्हाई सो वी कैन से दैट बोथ द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर और द चेंजिंग ऑफ वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. दैट मीन्स सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज होना या वेपर से गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना आफ्टर कूलिंग, उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं. सो फॉर दिस डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस वी नीड द सब्सटेंस शुड बी अंडरगो ऑन हीटिंग. हीट में उसको जाना पड़ेगा. जैसे वो हीट में जाता है तो इट शुड बी द सब्सटेंसेस शुड बी डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर फॉर्म, and that vapor form that we call sublimations. And similarly that vapor, once it cools down, it again comes back in the form of solid form which the substances is existed in previous. तो जो पहले वो solid form में था तो फिर दोबारा वो गैसेस से सॉलिड में बन जाना, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशंस. सो फॉर एग्जांपल टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड दैट, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज सॉलिड आयोडीन. सॉलिड आयोडीन इज सच अ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस दैट गो अंडर sublimations. दैट्स व्हाई सॉलिड आयोडीन sublimes means ऑन हीटिंग ये गैसेस में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, लिक्विड में नहीं, डायरेक्टली इट चेंज इनटू गैसेस फॉर्म. दैट्स व्हाई इट स्टैंड फॉर दैट सब्लाइम्स. इसीलिए वो सब सब्लाइम्स कहलाता है. तो सब्लाइम्स ऑन हीटिंग इट मींस दैट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर व्हिच इज कॉल्ड गैस. एंड solid iodine is sublimes on heating, it change into vapor form. Another one, dry ice. Dry ice sublimes on heating which is directly converted into vapor. So
One of the another example is dry ice. Dry ice is in solid form, and once it get heated, it converted directly into वेपर विच इज कॉल्ड गैस, यानी कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर इसी गैस को इफ वी कूल डाउन these gases, it directly change into solid form. So again we can get this dry ice in solid form after cooling down. Next one, from this about discussion what we did recently, on that basis there is some different questions I have written on the board. So you can see that why naphthalene balls disappear with time without leaving behind any residue. So it's a related question which we had discussed recently. So why naphthalene, यानी कि naphthalene balls you already familiar about naphthalene balls, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कपूर. That means we use in clothes also to keep away the insects, यानी कि इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए हम लोग कपूर यूज करते हैं. समटाइम्स इन आवर इन फोल्डेड क्लोथ्स, इन सूटकेस, इन दैट इन गोदरेज, इन सेल्फ दैट वी यूज, हम लोग यूज करते हैं. तो इन दैट पर्पस दैट नैप्थलीन बॉल्स आर यूज्ड. तो वही नैप्थलीन बॉल्स के बारे में बता रहा है यहाँ पे. व्हाई नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम, यानी कि समय के साथ नैप्थलीन बॉल क्यों डिसअपीयर हो जाता है, क्यों गायब हो जाता है, विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू, कोई भी उसका अवशेष बचता नहीं है. व्हाई इट इज सो. कभी आपने देखा होगा इन योर डे टू डे लाइफ, जब भी नैप्थलीन बॉल हम लोग कपड़े पे डालते हैं, तो कपड़े पे रखते हैं, तो कुछ दिन बाद जब हम लोग ढूंढते कपड़े को खोलते हैं, तो जहां पर नैप्थलीन बॉल हम लोग ने रखा वो गायब हो जाता है, दिखाई नहीं देता कहाँ गया. व्हाई इट इज सो, बिकॉज ड्यू टू द सब्लिमेशन. क्योंकि नैप्थलीन बॉल्स ऑल्सो गोज अंडरगो सब्लिमेशन. तो दिस इज द रीजन. Since naphthalene balls undergo sublimations, which means slowly it get convert into vapor and after some day disappear completely into the air. तो इसीलिए हम लोग को नैप्थलीन बॉल दिखाई नहीं देता है, गायब हो जाता है. तो इसका कारण यही है क्योंकि नैप्थलीन बॉल सब्लिमेशन प्रोसेस में चले जाता है. क्योंकि वो बोलने का मतलब सॉलिड नैप्थलीन बॉल्स undergoes sublimations, and in that sublimation it directly change into vapor form, यानी कि गैस फॉर्म में वो परिवर्तन हो जाता है. तो कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है. क्यों बोलने से नैप्थलीन बॉल वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो हम लोग के सराउंडिंग एयर में जाकर मिल जाता है, और सराउंडिंग एयर में मिल जाने के कारण से वो दूर उड़कर चले जाता है. इट जस्ट फ्लू अवे विथ सराउंडिंग एयर्स. दैट्स व्हाई इट डिसअपियर्स. आई होप दैट यू अंडरस्टूड. सी यू इन द लेट्स टॉक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. Now we have another topic. Last time we had discussed about effect of heating, and we have now effect of change of pressure. So let us start. Physical state of matter. Physical state of matter can also be changed by changing the pressure, that is decreasing or increasing. Means प्रीवियस टाइम हम लोग ने पढ़े थे बाय हीटिंग किसी भी, दैट मीन्स इफ वी अप्लाई हीट इन अ सब्सटेंस, अगर किसी सब्सटेंस में हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो उसके फिजिकल स्टेट चेंज हो जाते हैं. और दूसरा आज हम लोग का प्रेशर है. तो प्रेशर, फ्रॉम बाय प्रेशर ऑल्सो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ
particular substances. So have a look here. Physical state of matter can also be changed by changing the pressure. यदि हम लोग किसी भी प्रेशर दबाव अगर हम लोग किसी सब्सटेंस में डालते हैं, चाहे वो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, यानी कि प्रेशर अप्लाइंग ऑफ प्रेशर either decreasing or increasing, then that particular substances get changed its physical state. So we can see through by 2 or 3 examples over here. So gases can be changed into liquid by increasing the pressure. तो gases can be changed, गैस को हम लोग लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. अगर कब हम लोग चेंज कर सकते हैं? व्हेन वी विल चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस को हम लोग लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. तो उनके प्रेशर को हम लोग को इंक्रीज करना है, यानी कि उसके दबाव को, एक्सटर्नल फोर्स को अगर इंक्रीज करते हैं बाय प्रेशरिंग, तो गैसेस को हम लोग लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. Second one, some solid can change into gases on decreasing the pressure. तो कुछ सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं. We can change into gases form when we decrease the pressure. जब हम लोग उसके दबाव को, एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग कम कर दें. तो let us one example, let us focus on the one example, that is about the gases, how the gases change into liquid form. किस तरह से वो चेंज हो रहा है लिक्विड फॉर्म में. तो gases can be liquefied by applying pressure. First pressure होना जरूरी है, applying more pressure, and second one is lowering the temperature. Simultaneously, साथ साथ में टेम्परेचर को lower भी करना है, यानी कि कम भी करना है. By applying high pressure, the particles of a gas can be brought so close together that it liquefies. देखो, one question is arising, that is how the gases can be changed into liquid form. किस तरह से? Because the particles are randomly, it is all in directions. How do we collect all the particles assembled together? This is the big reason, ना? तो उनको कैसे हम लोग समेट सकते हैं? तो इसको बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर के कारण से रैंडमली गोइंग इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, वी कैन कलेक्ट देम बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर्स एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली द लोअरिंग द टेम्परेचर ऑल्सो. सो पार्टिकल्स को क्या होता है at that time when we apply the high pressure on a gases, what happen about the particles? तो particles में क्या होता है? तो particles क्या हो जाता है? It comes in closer, much closer. वो particles high pressure के कारण से सारे molecules of atoms क्या हो जाते हैं? particles आपस में close में आ जाते हैं, और जिसके कारण से वे लिक्विफाई, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. लेट अस जस्ट हैव अ लुक वन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर. व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड टू मच, यदि हम लोग किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं किसी भी कंटेनर में डालने के लिए, एक पिस्टन के द्वारा, पिस्टन से किसी भी कंटेनर को गैस के द्वारा गैस भरते हैं किसी कंटेनर में, तो उस समय कंप्रेस, उसको ठूसा जाता है. कंप्रेस का मतलब दबाना. तो छोटे से छेद से गैस क्या होता है? जाता है. कैसे बोलने से? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स क्या है? they have a greater spaces, so that's why the particles are very flexible and they collide to each other. एक दूसरे के साथ वो collide करते रहते हैं. That's why in a high pressures, when we compress the gas too much, उस समय क्या होता है? Heat also simultaneously it's produced. तो उस समय क्या होता है? ड्यू टू कंप्रेशन का दबाव के कारण से उसको जब एक कंटेनर में हम लोग ठोस कर पिस्टन के मदद से डालते हैं, तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में,
तो उस समय हाई प्रेशर के कारण से हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो टू कूल डाउन दैट हीट, उस हीट को ठंडा करने के लिए टेम्परेचर को लो कर दिया जाता है, और लो करने के कारण से दैट गैसेस क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन हाउ द gaseous particles how the gases get converted into liquid form. So हम लोग नेचुरल गैस को भी देखते हैं, हम लोग के कुकिंग गैस को देखते हैं, घर पे जब लाते हैं एक कंटेनर में होता है जिसे हम लोग गैस सिलेंडर बोलते हैं। जब उसे हिलाते हैं तो क्या पता चलता है, अंदर की तरफ लिक्विड जैसा महसूस होता है। दैट्स वाई हम लोग गैसेस को हम लोग लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं, बिकॉज कंटेनर के अंदर रहने पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वो बाहर निकलता है it again change into gaseous form, because their particles randomly move in all directions. I hope that you understood about this topic. See you in the next video. Till then, goodbye, take care. Thank you.